Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader and एक हफ्ते पहले मेरा term 1 खत्म हो गया था and my term 2 has just started. And the last week I did not study a lot because I was occupied with a bunch of stuff. But now I need to finally get back on track because we have not been studying since a while. And अभी तक मेरा syllabus complete नहीं हुआ है क्योंकि मेरे midterm start हो गए थे and I had to focus on that. जिसका रिजल्ट वीडियो भी आने वाला है. I need एक और सब्जेक्ट के मार्क्स. आफ्टर दैट आई अपलोड द रिजल्ट वीडियो, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब फॉर दैट क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी very interesting. Anyways, so this video is going to basically be like my routine and a study vlog, and I'm sure it's going to be extremely productive. So make sure that you watch this video to the very end because you will feel extremely motivated by the end of this video, and I'll share a lot of really interesting study tips about how I'm studying for my term 2 exams, which is basically my board exams. So yes, without wasting any more time, let's get right into the video. Also guys, I'm wearing like such a horrible outfit today. Let me show you all. So I'm literally wearing a red top with green shorts. I'm basically a Christmas tree today. Anyways, आज छुट्टी है मेरी, so I don't really care about dressing nicely. So let's go write down our to-do list and start studying. And मैंने अपना पूरा रूम साफ किया था, so let me show you all that as well. And I got a new laptop. Yes, this is my first ever laptop, and as you can see, if you've been consistent on my channel, you would know that I had a computer over here, but now the computer is gone and we have a laptop. And अभी 12 बज रहा है, तो पहले पूरा दिन मैंने इसको सेटअप करने वगैरह में यूज़ किया. कंप्यूटर वगैरह यहाँ से हटाना था एंड ये पूरा स्पेस क्लीन करना था वापस, बिकॉज कंप्यूटर के कारण इट वॉज वेरी डर्टी. सो वी हैड टू क्लीन ऑल ऑफ दैट अप एंड वी हैड टू मेक स्पेस फॉर ऑल द इक्विपमेंट्स ऑफ द लैपटॉप. So we did all of that and I'm so happy. I will tell you about detail बाद में. It's very pretty. I really like it. So before I start studying, I will write down my to-do list because it is very important to make a plan of everything which you're supposed to do that day so that you're able to do all of it efficiently. अगर तुम सिर्फ अपने mind में सोच लोगे कि हाँ जी मुझे आज ये tasks करने हैं, most likely you will not be able to complete most of them. But if you write them down, then you have a proper plan of everything which you have to do, and then there are higher chances that you're able to do them productively and actually focus on your goals. So ऐसे ही मैंने अपनी to-do list में सारे tasks लिखे एंड दिस इज माई टू डू लिस्ट. मैंने सब कुछ ऑर्डर में ही लिखा है जिसमें मुझे करना है. Now I am doing statistics. I already did it from the NCERT, so that is why I was doing it from R.D. Sharma now. Term 1 पे मैंने ML अग्रवाल पे ज़्यादा ध्यान दिया था, but I guess for term 2 I will be focusing on R.D. Sharma वाली book more. एंड मुझे पूरी बुक कंप्लीट भी करनी है अक्टूबर एंड से पहले सारे चैप्टर्स, क्योंकि मैंने पहले इस बुक पे उतना फोकस नहीं किया था, बट मेरे मिड टर्म एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसी बुक से आए थे. सो दैट इज़ वाई आई फील लाइक आई शुड प्रैक्टिस इस बुक के क्वेश्चंस और ज़्यादा. एंड आई वाज आल्सो लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल डूइंग माय वर्क क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फोकस ऑन समथिंग फॉर वेरी लॉन्ग इफ आई डोंट हैव म्यूजिक. एंड एज आई वाज डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर मेरा क्वेश्चन करेक्ट होता है वी टिक द क्वेश्चन, and अगर गलत होता है we just circle it up so that when I'm revising this chapter I can just practice the questions जो मुझसे first time में गलत हुए थे. That way I have a more efficient revision. And अभी मुझे पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो चुका था. It was 1:11 and I checked it off my to-do list. So basically मेरे को मम्मा ने सुबह stats पढ़ाया था, she explained it to me, and after that she told me to practice questions from R.D. Sharma. तो हम लोगों ने first topic which is the मीन वाला टॉपिक हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया, ऑल द डिफरेंट मेथड्स. एंड आफ्टर दैट आई प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम R.D. शर्मा एंड आई वाज एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस. सो दैट इज ग्रेट. सो दैट मीन्स वी आर डन विद दैट टॉपिक. अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड मम्मा सो रही थी, इसीलिए मैंने एक ऑरेंज खा लिया. एंड आई हैड टू डू फिजिक्स ऑल्सो, सो मैंने अलग सर का वीडियो लगाया. मिड टर्म में हमारा फर्स्ट हाफ आया था इस चैप्टर का रेजिस्टेंस तक, एंड द सेकेंड हाफ अभी हमें करना था स्कूल में. सो आई थॉट कि इसको पहले से ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. बिफोर मिड टर्म्स आई हैड ऑलरेडी डन दिस टॉपिक, बट आई फेल्ट लाइक रिवाइजिंग इट वंस अगैन बिफोर आई प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो उस बात को भी 1 मंथ हो चुका है. सो आई फील लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज
रिवाइज इट एटलीस्ट एक बार. तो मैंने अलग सर का लेक्चर देख के रिवाइज किया एंड जो सब वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे थे उन सबको प्रैक्टिस किया. एंड लाइक जो थ्योरी पोर्शन था उस सबके नोट्स बनाए. मोस्टली तो इसमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाए थे उन्होंने एंड काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी क्योंकि हमने काफ़ी सारे PYQs भी प्रैक्टिस किए थे इन द लेक्चर ओनली. एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक द फर्स्ट हाफ इज़ वेरी ईजी, लाइक जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है. एंड द सेकेंड हाफ इज़ वॉट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट क्योंकि उसमें सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स हैं. आई मीन यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ यू आर ऑल्सो इन ग्रेड 10. तो इसी तरह हमने बस इस टॉपिक को पूरा रिवाइज किया अच्छे से. आई ऑनेस्टली लाइक फिजिक्स मोर देन केमिस्ट्री एंड बायो क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड मुझे मैथ्स भी बहुत पसंद है इसलिए मुझसे हो पाते हैं. Anyways, after that, I had my lunch. राजमा चावल था मेरा फेवरेट एंड आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग फ्रेंड्स. खाना खाने के बाद बिना कोई ब्रेक लिए मैंने अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट किया जिसमें सबसे पहले तो मैंने लेक्चर ही कंप्लीट किया था क्योंकि अभी तक मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि आई वॉज लाइक वॉचिंग पूरा लेक्चर. So that is why complete नहीं हुआ था इसलिए हमने उसको complete किया. Also guys, I have another tip for you all. Whenever you are watching a lecture or a video on YouTube, always sit with a notebook and a pen so that you can write down the important stuff. जब तुम like lecture को देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, more senses are involved and you're more likely to remember whatever you are watching. And like जब तुम लिख रहे होते तो तुम्हारा फटाफट उसी वक्त एक revision भी हो जाता है. So that is obviously very nice. So now I have watched electricity का lecture पूरा and I have also like practiced the questions which were done in the lecture. So now we will do the NCERT file portion from this chapter. पहले मैंने उतना ही किया था जितना मेरे मिड टर्म में आ रहा है but now I've completed the entire chapter and the second half is actually more difficult. So let's just complete all of this ताकि हमारी एटलीस्ट NCERT की पूरी प्रैक्टिस हो जाए. एज मेरे माइंड में लेक्चर अभी बिल्कुल फ्रेश ही था तो मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए. आई फील लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में NCERT के क्वेश्चंस आर नॉट द ईजीएस्ट. लाइक मुझे इसी चैप्टर के NCERT क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगे कंपेयर टू ऑल दी अदर चैप्टर्स. सो मैंने इन सबको प्रैक्टिस किया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें NCERT के सारे क्वेश्चन आते हो एंड बैक एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन आते हो बिफोर यू मूव टू अ रेफरेंस बुक बिकॉज दे आर मोस्ट लाइकली टू कम इन द एग्जाम. And after that I checked it off my to-do list. Also guys, I have an MUN in October so I need to at least start researching for that ताकि उसका काम कुछ हद तक मतलब start हो सके at least क्योंकि अभी फिलहाल I haven't even started it and basically I'm doing double del उसमें so I won't have to do all of the work. I will basically divide it 50-50 with my partner. So yeah, I'll do आधा. So आज उसको start कर लेते हैं and let's try to research and stuff क्योंकि I've studied a lot already. Like I've revised electricity पूरा and electricity is like a huge chapter and I have also done stats half. So yeah, now let us like research for the MUN thing because that is also very important. So मेरा MUN 12th October को है and it's like a really big MUN, like it's one of the biggest MUNs in my area and I'm really hoping to get at least like a special mention in it. So that is why I was like starting early ताकि मेरा काम हो जाए क्योंकि अक्टूबर में like मेरे को अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि फिर प्री बोर्ड्स भी पास होंगे. So इसलिए मैंने अपना रिसर्च वगैरह कंप्लीट किया and after that my dad made these veggies so we had them. They were really yummy and मैं और मम्मा उसके बाद वॉक करने चले गए थे. हम लोगों ने आइसक्रीम भी ली थी क्योंकि हमें भूख लग रही थी एंड स्काई वाज लिटरली सो प्रिटी. ऑल्सो गाइज मेरी आइसक्रीम और मम्मा की आइसक्रीम में डिफरेंस देखो तुम. उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी बिकॉज वी वर सपोज टू मीट टुडे. Hi guys, I'm at Ananya ka house now. Did you miss me? No, Did you miss me? I know you did. I didn't miss I her. know you did. Oh my god, this guy Meet my looks doll. pretty. Yeah, they look demonic. I just came to her house and I saw These are not dolls. mine. They're my cousins. But They're like demonic. They're bald. they're bald. They're bald. They're They're like literally they have bald. hair. Like look at that. You can't. Can you see it? I don't know. They're literally bald, and Ananya's house is literally filled with kids right now. Like, Yeah, I just now walked she's in and I here. saw kids on the floor. They were just lying there. Yeah. Not one, I'm, not I'm, two, a, I'm a multiple. babysitter, side hustle. Unpaid babysitter, which is like sad. And I had 5 rupees, and we found tandoori tomato. Like I literally just came with this much. So Ananya did not have 5 rupees. Instead, she had 4 rupees. That is, She had to pay me the ₹1, which is great. yeah. We love. So we have tandoori tomato now.
1 rupee, the grace of Ashika. Yeah. Okay guys, so now we're back and now I need to get back to studying क्योंकि हमने काफ़ी टाइम पास कर लिया है. So अब हम पढ़ते हैं and I'm pretty sure I'll do maths next. I need to do circles also from R.D. Sharma. So we'll do that क्योंकि मुझे कुछ like different type के questions की practice करने हैं क्योंकि circle में maximum like prove करने वाले questions आते हैं. And मेरे midterm exams में मैं already एक prove करने वाला question गलत कर चुकी हूँ. So now I just want to practice as many of those questions that I can. And midterm exam वाला video तुम यहाँ पर देख सकते हो. It is very interesting. You're going to see me suffer a lot. Anyways, now I'll be doing circles. तो मैंने लिटरली बस अपनी बुक खोली ही थी पढ़ने के लिए कि माई मॉम गेव मी डिनर विच इज़ अगेन राजमा चावल एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज आई लव राजमा चावल अ लॉट. तो आई वॉज वॉचिंग फ्रेंड्स वाइल ईटिंग एज ऑलवेज एंड आफ्टर दैट वी कंटिन्यूड विद आर पढ़ाई. तो मेरे को सर्कल्स करना था एंड आई वॉज डूइंग दैट. आई फील लाइक सर्कल्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर चैप्टर अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं. लाइक तुम्हें सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियसली एक बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ देम इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. लाइक इट जस्ट कॉल्स फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है एंड उसी फॉर्मूला को हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है. नो, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो आई वॉज डूइंग इट फ्रॉम R.D. शर्मा अगैन एंड मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि आई बी फोकसिंग ऑन R.D. शर्मा मोर देन ML अग्रवाल. देन आई चेक्ड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट एंड मेरे को मम्मा ने दूध भी दे दिया था तो हमें वो भी पीना था एंड आई थॉट कि आई वुड ईट बिस्किट्स व्हेन आई ड्रिंक इट बट मुझसे बिस्किट का डब्बा ही नहीं खुल रहा था. तो उसके बाद मेरे को पापा के पास जाना पड़ा कि मेरा प्लीज़ खोल दो. सो ही ओपनड इट फॉर मी एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द बिस्किट दैट आई एम ईटिंग. इट्स लिटरली माई फेवरेट. एंड अब 10:17 हो गए थे और काफ़ी नींद भी आ रही थी बट वी स्टिल हैड टू कंप्लीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो दैट इज़ वाई वी वर डूइंग दैट. मैंने पहले सोचा था कि मैं NCERT से रीड करूँगी बट फिर मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि आई थॉट कि अलग सर का लेक्चर देख कर ही कर लेते हैं क्योंकि फिर मुझे समझ भी आ जाएगा, नींद भी नहीं आएगी एंड मेरे नोट्स भी साइड बाय साइड बन जाएंगे. फर्स्ट हाफ ऑलरेडी केम इन माई एग्जाम इसीलिए आई जस्ट हैड टू कंप्लीट द सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर. तो मैं वही कर रही थी एंड सेकेंड हाफ इज़ ऑनेस्टली लाइक सिंपल कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ क्योंकि बस लाइक मेटलर्जी करना था एंड करोशन करना था जो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गए थे बट काफ़ी कुछ रट्टा मारने वाला था लाइक नेम्स ऑफ अलॉयज एंड वो आई थिंक मुझे इतने अच्छे से लर्न नहीं हुआ है बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी स्लीपी. सो आई विल जस्ट रिवाइज माई नोट्स वंस अगेन सुबह उठ के ताकि वो भी एक बार रिवाइज हो जाए हमको. देन आई चेक्ड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट. नाउ आई एम डन विद ऑल ऑफ माई टास्क्स एक्सेप्ट SST एंड अभी काफ़ी रात हो गई है और मुझसे SST होने भी नहीं वाली है. सो आई जस्ट विल नॉट वेस्ट माई टाइम ट्राइंग टू डू इट राइट नाउ बिकॉज आई नो आई वोंट बी एबल टू डू इट. Instead, I will edit my thumbnail for this video because I have not posted anything like a proper video since a very long time and I feel like you guys deserve a video. So that is why I will edit my thumbnail right now. एंड आफ्टर दैट वी विल रिसर्च MUN के बारे में थोड़ा सा और क्योंकि मुझे अच्छे से एजेंडा भी नहीं समझ आया था जब मैंने रिसर्च किया था. लाइक आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द मेन सिनेरियो इन द एजेंडा बिकॉज इट्स लाइक इट्स नॉट अ ईजी एजेंडा. इट्स बेसिकली अ क्राइसिस एंड लाइक अफ्रीका में कहीं टेररिज्म है तो उसके ऊपर है. सो आई नीड टू एटलीस्ट लर्न अबाउट दैट सिचुएशन टुडे सो दैट कुछ तो मतलब मेरा हो मुझे पता तो कि क्या होने वाला है. Anyways, so let's do that right now. तो मेरा थंबनेल बस बन ही चुका है. मेरे को कुछ चीज़ें एडिट करनी है. आई फील लाइक इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग मैंने ये काम कर लिया तो मेरा काफ़ी लाइक फ़ायदा हो गया क्योंकि अदरवाइज मेरे को सपोर्ट के तो ईदर वेज करना ही था एंड मैं अभी पढ़ भी नहीं रही थी. सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग समथिंग ऑन Netflix आई डिड दिस वर्क. सो दैट इज़ ग्रेट एंड दिस इज़ हाउ माई थंबनेल लुक्स. आई मीन तुम लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो पे क्लिक करने से पहले बट येस. Anyways guys, that is it for today's video. I hope you enjoyed it and if you did, make sure to like and subscribe to my channel for many more such videos. And मेरा midterm का result भी आने वाला है, so stay tuned for that and follow me on Instagram because I upload exclusive content over there. मैं अपनी ID यहाँ पे डाल दूँगी. Love you always. Take care. Bye bye.